कॉम का नाम सुना है? कौन थी मेरी कॉम? बॉक्सर। बॉक्सर अभी भी आप लोगों ने उसकी फिल्म भी आई थी ना, मूवी आई थी ना उसके, हाँ मेरी कॉम की मूवी भी आई है। तो उस मूवी से भी आपको पता चलेगा। इसमें तो बहुत शॉर्ट दिया है। एक उस दिन के पोएम में हम लोगों ने देखा कि द वर्ल्ड इज माइन। हम लोग को 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, फिर भी हम कंप्लेंट करते हैं, बराबर है। लेकिन ऐसी परिस्थिति कभी कभी ऐसी भी होती है कि ये सब कुछ भी है हमारे पास, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, इंडिया का ही अगर हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, तो कुछ लोग ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे कोई दुनिया की अच्छी बातों का कोई संपर्क नहीं है। मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ पहुँचती नहीं है ज़्यादा, जहाँ पे कोई मॉडर्न सुविधा है जिसे हम लोग कहते हैं वो वहाँ तक पहुँची नहीं है, फिर भी वहाँ से लोग जो है वो अपने आप को साबित कर चुके हैं। उसमें से एक कविता राउत, पता है ना आपको? कविता राउत का नाम सुना है ना? हाँ, कविता राउत का नाम नहीं सुना? वी आर फ्रॉम नासिक। नासिक की लड़की है वो। पेठ सुरगाना नाम का एक जो जगह है, आदिवासी भाग है नासिक के थोड़ा सा आगे की साइड में, वहाँ पे सारे आदिवासी लोग रहते कि उस जगह पे उस लड़की को स्कूल आने के लिए बहुत दूर तक भाग के आना पड़ता था। तो वो आज क्या हो गई है? नंबर 1 की क्या हो गई है? रनिंग में टॉपर हो गई है वो लड़की। और इसने इंडिया को ओलंपिक में क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। तो ऐसी ही भारत को ओलंपिक में बॉक्सिंग के फील्ड में रिप्रेजेंट करने वाली लड़की कौन थी? मेरी कॉम थी। मणिपुर के एक छोटे से गांव से ये लड़की आई थी। तो उसने किस प्रकार से अपने आप को साबित किया है, वो किस प्रकार से बड़ी बनी है, इतनी छोटी सी दुनिया से आकर भी इतनी बड़ी दुनिया में वो अपने आप को क्या कर सकी है? साबित कर सकी है। तो इसकी ये कहानी है। तो पहले हम लोग पार्ट में से पढ़ते हैं। ओपन योर बुक, पेज नंबर 147. The name of the lesson is Unbeatable Super Mom Mary Kom. Just first focus on the word unbeatable. The word unbeatable means a person who cannot be beat by anyone. मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, उसे क्या कहते हैं? Unbeatable. But what is she? She is a super mom. She is not only a athlete. वो athlete नहीं है सिर्फ, वो क्या है? सुपर मॉम है। सुपर मॉम मतलब माँ है। इतना अपने आप को साबित करने के बाद भी वो एक अच्छी माँ भी है। तो उस हिसाब से ये लेसन लिखा गया है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द लेसन। There had to be one successful story if Indians were to survive in sports, and we have that story now. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. This warrior is none other than Mary Kante Kom, the conqueror and the comrade. She is famed as a 5 times world boxing champion and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kilogram flyweight category of boxing. Kom was born in Kantei village, Moirang Lamkei in Churchandapur district of rural Manipur in eastern India. She came from a poor family. Her parents Mangte Tonpak Kom and Mangte Akhlam Kom were tenant farmers who worked in jute fields. Kom grew up in humble surroundings, helping her parents with farm-related chores, going to school and learning athletics initially and later boxing simultaneously. Her father was a keen wrestler in his younger age. She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dingo Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal, Kom recollects, had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. Mary Kom's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. In 2001, she started competing at international level. She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA
Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 weight category. Her greatness is reinforced by the way she apologized to the whole nation for not being able to win the gold. She is legend for sure and an idol for the sportswoman to look up to. यहाँ तक हम लोग पहले देखते हैं. आगे सिर्फ इंटरव्यू है. पहले व्हाट इज मेरी कॉम वो इसमें दिया है. क्या है मेरी कॉम, कहाँ से आई है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है. ध्यान दीजिए फर्स्ट लाइन पे. There had to be one successful story if Indians were to survive in sports. We have that story now. If you want to survive in sports, अगर आपको स्पोर्ट्स में सर्वाइव करना है, सर्वाइव मतलब रहना है, जीवित रहना. सर्वाइव का मतलब जीवित रहना होता है, लेकिन यहाँ पे सर्वाइव का मतलब जीवित रहना होगा क्या? नहीं. यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स में रहना है, मतलब स्पोर्ट्स में आपको टिके रहना है. तो आपको क्या चाहिए? देयर शुड बी वन सक्सेस स्टोरी. आपके पीछे एक सक्सेस स्टोरी होनी जरूरी होती है. गीता गोपीनाथ का एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि गीता गोपीनाथ जो थी वो उसने लिखा था कि अगर स्पोर्ट्स में आपको कुछ करना है तो यू शुड हैव टू बी एट द नंबर 1 पोजीशन. आपको नंबर 1 पोजीशन पे ही इंडिया में रहना है. नंबर 2 के लिए भी कोई स्कोप नहीं है. तो आपको अगर नंबर 1 पे रहना है तो ही आप क्या कर सकते हो? सक्सेसफुल बन सकते हो. सो देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ यू वांट टू बी सर्वाइव इन स्पोर्ट्स. अगर स्पोर्ट्स में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपके पास क्या होनी चाहिए? सक्सेस स्टोरी होनी जरूरी. सक्सेस स्टोरी का मतलब क्या होता है? आप यशस्वी होना, सफल होना जरूरी होता है किसी न किसी जगह पे. Enough has been said about this great warrior who conquered the world. Enough has been said. Enough मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ कहा गया है. About this warrior, इसको warrior कहा गया है. Warrior मतलब योद्धा. She is a warrior who have conquered the world. जिसने वर्ल्ड को कॉन्कर किया है. कॉन्कर करना मतलब जीतना. जिसने किसे जीता है? दुनिया को जीता है. This warrior is none other than Mary Mangte Kong. इसका नाम क्या है? Who is this warrior? मेरी मांगते कॉन्ग. उसका भी वो मणिपुर की है तो उसके नेम उसी टाइप से होते हैं. द कॉन्करर एंड द कॉमरेड. वो सिर्फ कॉन्करर ही नहीं थी, वो कॉमरेड भी थी. कॉमरेड का मतलब फ्रेंड होता है. कॉमरेड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड. ये कम्युनिस्ट लैंग्वेज है, यहाँ पे कॉमरेड कहा जाता है कम्युनिज्म में. फ्रेंड. शी इज famed as a 5 times world boxing championship and the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championships. उसका क्रेडिट देखो क्या है. She is famed as a 5 times world boxing champion. 5 times 5 बार वो दुनिया की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, वो 5 बार उसकी क्या हो गई? चैंपियन हो गई थी. And the only boxer to win a medal in every one of the 6 world championship. हर दुनिया में जो 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी ना, उनमें से हर चैंपियनशिप में उसने क्या जीता था? एक मेडल जीता ही था. हर चैंपियनशिप में उसने एक मेडल जीता था. मतलब वो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे हुआ करती थी. पूरी दुनिया में जो चैंपियनशिप होती है कौन सी? बॉक्सिंग की. तो हर चैंपियनशिप में उसे क्या मिला है? मेडल मिला है. In the 2012 Olympics, she became the first Indian woman boxer to qualify and win a bronze medal in the 51 kilogram flyweight category of boxing. ये कब की बात है? 2012. अभी 2021 चल रहा है, मतलब करीब 10 साल पहले, 9 साल पहले की बात है. In 2012 Olympics, ये कब का है? ओलंपिक्स की बात है. She became the first Indian woman boxer to qualify. इंडिया की पहली बॉक्सर थी जो क्या हो गई है? क्वालिफाई. पता है ना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होना भी बहुत ही टफ कंपटीशन होती है, क्योंकि पूरे इंडिया में से चुना जाता है आपको. तो उसके लिए वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के अनुसार आपको, आपके अंदर सारे गुण हैं तो ही आप क्वालिफाई होते हैं. तो इंडिया में से सब पहली क्वालिफाई हुई थी. क्वालिफाई मतलब अपने आप को साबित किया था उसने. कहाँ पे? ओलंपिक्स के लिए. एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 51 किलोग्राम फ्लाई वेट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग.
बॉक्सिंग हो या फिर दूसरे कोई भी गेम्स हो, तो आपको पता है ना कि उसमें मतलब आपकी हाइट, आपका वेट कम है और आपको किससे लड़ना है। अगर आपका वेट 40 kg है और आपको 60 kg से लड़ने के लिए कहा जाए तो सही होगा क्या वो? नहीं। इसलिए वो एक ग्रुप बनाते हैं हर एक एज का, 42 kg का ग्रुप, 50 kg का ग्रुप, 52 kg का ग्रुप, 60 kg का ग्रुप। केजी मतलब किलोग्राम का। तो जिसका इसकी जो वेट था वो कितना था? 51 किलो। मतलब उसकी खुद की भी वजन कितना होना चाहिए था? 51 को थोड़ा भी कम रहा तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसमें आप खेल नहीं सकते। तो आपको वहाँ पे खेलने के लिए 51 kg ही चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए अगर कंपटीशन में उतरे हो। तो उसने और फ्लाईवेट जो दिया है ना शब्द, तो उसके कुछ इवेंट होते हैं, जैसे स्विमिंग के इवेंट होते हैं, स्विमिंग में भी फ्लाइंग होती है और बहुत सारे इवेंट होते हैं। तो वैसे अलग अलग इवेंट किसमें होते हैं? बॉक्सिंग में। तो उसमें एक इवेंट कौन सा था? फ्लाईवेट। 51 kg के फ्लाईवेट में उसको कौन सा मेडल मिला था? ब्रॉन्ज मेडल मिला था। पहली बार इंडिया को बॉक्सिंग में मेडल मिला था। तो ये बहुत बड़ी क्या थी हमारे लिए? क्या था हमारे लिए बहुत बड़ा? क्या किया था हम लोगों ने? कुछ ना कुछ सक्सेस, कुछ सफलता की हमारे लिए ये स्टोरी थी। क्या देखा इस छोटे से पैराग्राफ में? इफ यू वांट टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स इन इंडिया देन यू शुड हैव द स्टोरी। तुम्हारे पीछे क्या होनी चाहिए? सक्सेस कहानी। सो वी हैव दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ मेरी कॉम। हमारे पास ये मेरी कॉम की सक्सेस स्टोरी है। कौन है ये मेरी कॉम? शी हैव वन द 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 5 बार जीती है और 6 चैंपियनशिप तक उसने हर बार क्या प्राप्त किया है? 1 मेडल जीता है। एंड इन ओलंपिक इन 2012 शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा मेडल मिला उसको? ब्रॉन्ज मेडल मिला। कौन से किलोग्राम में? 51 किलोग्राम में। उसका इवेंट का नाम क्या था? फ्लाईवेट। ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। Kom was born in Kanthai village, Mairang Lamkhai in Churchandapur district of rural Manipur in eastern India. हमारी जो कौम है ना, ये मेरी कौम, she was born in Kanthai village। कहाँ पे जन्म हुआ उसका? कांथई नाम का विलेज था। कहाँ पे है ये कांथई विलेज? मोइरंग लामखई इन चूरचंदापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रूरल मणिपुर इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्ट साइड में, ईस्ट मतलब पूरब की साइड में। जो मणिपुर जानते हैं ना, स्टेट। हाँ, मणिपुर में का एक छोटा सा रूरल भाग है। रूरल मतलब, रूरल शब्द पे देखो, रूरल मतलब हम लोग अर्बन में रहते हैं। अर्बन मतलब सिटी में रहते हैं हम लोग सिटी में रहते हैं। और रूरल क्या होता है? विलेज। विलेज मतलब गांव को क्या कहते हैं? हमें रूरल कहते हैं। शब्द पक्का हो गया? सो वो कौन से गांव में हुई थी? मोइरंग उसके गांव का नाम था। लामखई, मोइरंग लामखई नाम था उसका। और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चूरचंदापुर डिस्ट्रिक्ट में। शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। कैसी फैमिली से आई? शी वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। हर पेरेंट्स मांगते टोनपाकोम and मांगते अखलामकोम were tenant farmers who worked in jute fields। बेटा किताब में ध्यान दो, लाइन पे हाथ नहीं रखा। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं ना, तो किताब में हर शब्द का दिमाग में, शब्द दिमाग में बैठना चाहिए। लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो किताब पे हाथ होना चाहिए। किताब नहीं लाई क्या? क्यों? हाँ, ओके। सो मांगते टोनपा, सॉरी, शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। हर पेरेंट्स, उसके जो पेरेंट्स थे, क्या नाम था उनका? मांगते तोनबा कोम एंड मांगते अखला कोम। उनकी स्टाइल होती है वो लिखने की, हमारा जैसा पूरा नाम लिखते हैं हम लोग, वैसे स्टाइल थे। हाँ, तो ये दोनों जो थे वो टेनेंट फार्मर थे। टेनेंट फार्मर किसे कहते हैं? जो बटाई से खेती करते हैं। बटाई समझते हैं? हाँ, दूसरे की खेत में जाकर काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बटाई की खेती। तो टेनेंट फार्मर थे। हु वर्क इन जूट फील्ड। झूम फील्ड का मतलब क्या होता है? जो स्थलांतरित खेती होती है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा झूम फील्ड क्या होते हैं। ज्योग्राफी के टीचर को पूछो, नहीं तो झूम खेती नाम की खेती चलती है। झूम खेती बराबर है, पढ़ा है ना?
हाँ, तो ये झूम खेती जो होती है वो क्या होती है कि बारिश के अनुसार वो जगह बदल बदल कर होती है, उसे झूम खेती कहते हैं। तो उस झूम फील्ड्स पर वो क्या काम, कैसा काम करते थे? टेनेंट फार्मर थे। टेनेंट मतलब बटाई, बटाई है मतलब सोचो कितने गरीब होंगे वो, बटाई से काम करने वाले थे। कोम ग्रू अप इन अ हम्बल सराउंडिंग, और हमारी जो कोम थी वो कैसी सराउंडिंग में उसकी परवरिश हुई थी? हम्बल। हम्बल मतलब वेरी सिंपल एंड पुअर कंडीशन, बहुत सीधी सादी जीवन जीने वाली कौन थी? हमारी मेरी कौम थी। उसका सराउंडिंग बहुत ही पुअर था, मतलब गरीबी में वो बढ़ी थी। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फार्म रिलेटेड कोर्स, वो क्या करती थी? शी ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प हर पेरेंट्स इन अ फील्ड, वो किस पे काम करती थी? फील्ड में भी मदद करती थी। कोर्स, कोर्स मतलब क्या? काम, किससे संबंधित? फार्म रिलेटेड कोर्स मतलब खेती से संबंधित कार्य में वो मदद करती थी। गोइंग टू स्कूल, फिर उसके बाद वो कहाँ जाती थी? स्कूल। एंड लर्निंग एथलेटिक्स, इनिशियली शुरू में उसने क्या सीखा था? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या होता है जानते हैं? सिर्फ रनिंग नहीं, बहुत सारी जो उछल कूद की जो एक्टिविटीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सरसाइज से रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है उसे क्या कहते हैं? एथलेटिक्स कहते हैं। सो इनिशियली मतलब शुरू में उसको एथलेटिक्स में इंटरेस्ट था। एंड लेटर बॉक्सिंग, और बाद में लेटर उसके बाद में वो किस में चली गई? बॉक्सिंग में। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या? एट द सेम टाइम, साथ साथ, उसी के साथ साथ। हर फादर वाज अ कीन रेसलर इन हिज यंगर एज। कैन यू इमेजिन? आज झूम फील्ड पर काम करने वाला इंसान जो था वो कौन थे? उसके पापा क्या थे? रेसलर हुआ करते थे। रेसलर मतलब कुश्तीगीर हुआ करते थे। इन हिज यंग एज, उसके यंग एज में वो क्या हुआ करते थे? कुश्ती लड़ा करते थे। क्या देखा हम लोगों ने इस छोटे से पैराग्राफ में? इन द सेकंड पैराग्राफ, मेरी कोम was born in Kandhi village. उसका पूरा डिटेल्स में लिखूंगी। It's a very suburban part of the rural area. Rural area का बहुत ही दूर का भाग है। उसके पेरेंट्स जो थे, what were her parents? They were tenant farmer. क्या थे वो? Tenant farmer थे। कहाँ पे काम करते थे? झूम फील्ड पे काम करते थे। तो हमारे ये जो कोम थे, मेरी कोम, वो कैसी सराउंडिंग में? हम्बल सराउंडिंग में वो बड़ी हुई थी। फिर उसका काम क्या हुआ करता था? She always used to help her parents in the farm related course. Farm related मतलब खेती से संबंधित काम में वो काम करती थी। Then she used to go to school. उसके बाद वो कहाँ जाती थी? स्कूल जाती थी। और फिर उसके बाद थोड़ा सा एथलेटिक्स भी खेलती थी क्योंकि उसे बहुत पसंद था। धीरे धीरे फिर वो किस में चली गई? बॉक्सिंग में चली गई। And once upon a time her father was a keen wrestler. उसके फादर जो थे वो क्या हुआ करते थे? keen wrestler हुआ करते थे उसके जमाने में। सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। She had an eager interest in athletics since childhood, and the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. Coombe recollects had inspired many youngsters in Manipur to try boxing, and she too thought of giving it a try. यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इस थर्ड पैराग्राफ में देखो, she had an eager interest in athletics. उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें हुआ करता था? एथलेटिक्स। Since childhood, कब से? Since का शब्द की तरफ अंडरलाइन करो तो ये परीक्षा में since शब्द बीच में कहीं डालने के लिए आता है, कहीं भी आ सकता है। तो since का मतलब क्या? तब से, याद रखने का ही। Since childhood, बचपन से उसे किसमें इंटरेस्ट था? एथलेटिक्स में। And the success of Dinko Singh, a fellow Manipuri, returned from the 1998 Bangkok Asian Games with a gold medal. एक एग्जाम्पल दिया है, किसका एग्जाम्पल दिया है? Dinko Singh का। This Dinko Singh is from Manipur. वो कहाँ से था? मणिपुर। But he just win a gold medal. उसने क्या जीता था? गोल्ड मेडल। कहाँ पे? बैंकॉक एशियन गेम। बैंकॉक मतलब कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड है ना? थाईलैंड में बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी से हम लोग बोलते हैं वो क्या है? बैंकॉक है। तो बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुए थे, एशियन गेम्स पता है? अभी गेम्स के बहुत सारे प्रकार है, पता है ना? मतलब जो स्पोर्ट्स देखते हैं उनको सब पता होगा। तो बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुए थे उस गेम्स में 1998 में उसको क्या मिला था? गोल्ड मेडल मिला था। एंड
दैट इंस्पायर्ड हर, उसको उसकी वजह से क्या हुआ, इंस्पिरेशन मिला। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा मिली। कोम रिकलेक्ट्स, रिकलेक्ट्स मतलब याद करना, रिकलेक्ट करना मतलब यादें यादों के बारे में बात करना, तो रिकलेक्ट का मतलब क्या है, याद करना। हैड इंस्पायर्ड मेनी यंगस्टर्स इन मणिपुर, मणिपुर के बहुत सारे यंगस्टर्स को, यंगस्टर्स मतलब आपके जैसे जो यंग बच्चे थे उन सबको उसने क्या किया था, इंस्पायर किया था। टू ट्राई बॉक्सिंग, किसलिए इंस्पायर किया था, बॉक्सिंग ट्राई करने के लिए। She too thought of giving it a try, and at that time she also thought that I should also try the boxing. तो मैंने भी तो बॉक्सिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब रिंको सिंह को मेडल मिल सकता है एशियन गेम्स में, तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी तो मिल सकता है। ये सोचकर उसने भी क्या ट्राई करने के लिए तय किया, बॉक्सिंग ट्राई करने के लिए ट्राई किया। तो क्या देखा हम लोगों ने इस छोटे से पैराग्राफ में, इनिशियली Mary Kom was interested in athletics में interested थी since the childhood, but there was one person. What is the name of that person? Rinko Singh. He had won the gold medal. उसने क्या जीता था? Where? Bangkok में in Asian Games में. And because of that success, most of the Manipur youngsters were attracted or inspired by his story. उसकी स्टोरी से इंस्पायर्ड हो गए and they decided to do the boxing. और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया कि हम भी बॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये कौन, मेरी कॉम ने भी तब क्या तय कर लिया था कि I will also try the boxing, और तब वो बॉक्सिंग की तरफ निकल पड़ी। अब इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। Mary Kom's career started in 2000 after her victory in the Manipur State Women's Boxing Championship and the Regional Championship in West Bengal. अब मेरी कोम जो है उसका जो करियर जो था वो कब स्टार्ट हुआ, in 2000 साल में उसका करियर शुरू हुआ। करियर मतलब करियर क्या थी, भविष्य की जो भी यह होता है, हाँ, वो कहाँ कब से शुरू हुआ, 2000। After her victory in the Manipur State Women Boxing Championship, पहली बार उसने 2000 साल में क्या किया था, मणिपुर की जो स्टेट वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है ना, उसमें वो जीत गई थी। मणिपुर राज्य था, उस राज्य की एक चैंपियनशिप थी, बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, उसमें कौन जीती थी, मेरी कोम जीती थी। एंड द रीजनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल, और कुश्ती क्या जीती थी उसने, रीजनल चैंपियनशिप भी जीती थी। रीजनल चैंपियनशिप जानते हैं ना, विभाग में जो लोग खेलते हैं, हाँ, तो उसे रीजनल चैंपियनशिप कहते। तो प्रादेशिक विभाग की जो चैंपियनशिप थी वो भी उसने जीती थी। मणिपुर की स्टेट चैंपियनशिप जीती थी, रीजनल चैंपियनशिप भी जीती थी, और वहीं से उसका क्या शुरू हो गया, करियर शुरू हो गया था। In 2001 she started competing at international level. देखो एक ही साल में she started competing in international level. 2001 में उसने कंपटीशन शुरू कहाँ पे की, इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू किया। She was only 18 years old when she made her international debut at the first AIBA Women's World Boxing Championship in United States, winning a silver medal in the 48 kilogram weight category. हाँ, समझ में आया? बिना समझाए? She was only 18 years old. कितने साल की थी? 18 साल की। अब 16 साल की हो गए, और 2 साल के बाद 18 साल की थी वो। When she made her international debut, उसने जब अपना इंटरनेशनल डेब्यूट किया, डेब्यूट मतलब अपीयरेंस, शुरुआत की। जब उसने अपनी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत कब की, 18वें साल में। डेब्यूट का मतलब सिर्फ में शुरुआत, फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस फॉर और परफॉर्मेंस जिसे हम लोग कहते हैं। At the first AIBA, पहली बार उसने AIBA में किया। AIBA का मतलब क्या है, द अमेच्योर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा उसने अपना पदार्पण किया। कहाँ पे, बॉक्सिंग में। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन यूनाइटेड स्टेट्स, उसके द्वारा वो कहाँ पे खेली थी, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जानते हैं ना, वहाँ पे उसने जो पहली बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेली थी उसमें उसे क्या मिला था, she wins a silver medal। उसको कौन सा मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला। कौन से ग्रुप में, 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उसको सिल्वर मेडल मिला था। Her greatness is reinforced
By the way, she apologized to the whole nation for not being able to win gold. Her greatness is reinforced. Reinforced का मतलब क्या है? Strengthened. यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उसकी जो ग्रेटनेस, उसकी महानता दिखाई देती है। किस बात से? By the way, she apologized to the whole nation. उसने माफी, सारी दुनिया से apologize किया था। Apologize माफी मतलब मांगी। to say sorry, माफी मांगना। To say sorry to the whole nation, पूरी देश से उसने माफी मांगी थी। क्यों? For not being able to win the gold. उसको कौन सा मेडल नहीं मिला? गोल्ड मेडल। तो उसी से उसकी ताकत क्या है, उसका हमें पता चलता है कि वो अच्छी तो स्पोर्ट्स पर्सन थी ही, लेकिन उसने देश से माफी मांगकर ये दिखा दिया कि शी इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वुमन। शी इज अ लीजेंड फॉर श्योर, इसीलिए उसको लीजेंड कहा जाता है। लीजेंड का मतलब क्या होता है? इतिहास रचने वाला। वन हु मेक्स द हिस्ट्री, जो इतिहास बनाता है, इतिहास, उसे क्या कहते हैं? लीजेंड कहते हैं। She is a legend for sure and an idol for all the sportswomen to look up to. और वो सबके लिए आइडॉल है। आइडॉल मतलब आदर्श है। जो स्पोर्ट्स में आना चाहती है लड़कियां, उनके लिए वो क्या है? आइडॉल है। क्या देखा इस लास्ट पैराग्राफ में? मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000 when she win the Manipur State Championship and Regional Championship. Okay. In 2001 she made the first international debut. उसने अपना पहला इंटरनेशनल डेब्यूट किया। कहाँ पे? यूएसए में, बराबर, यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ पे जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, उसको वहाँ पे कौन सा मेडल मिला था? सिल्वर मेडल मिला था एट द 48 किलोग्राम वेट। स्टिल शी वाज वेरी हम्बल, बहुत ही अच्छी थी वो, डाउन टू अर्थ थी। दैट शी फील वेरी गिल्टी एंड सो शी सेज सॉरी टू द नेशन। उसने देश से क्या मांगी? माफी मांगी फॉर नॉट विनिंग द गोल्ड मेडल, कि मैंने देश को गोल्ड मेडल देना चाहिए था, तो मैंने क्या दे दिया? सिल्वर मेडल दे दिया। इसलिए उसने देश से क्या मांगी? माफी मांगी थी। तो ऐसी कौन थी? मेरी कॉम। शी इज रियली अ लीजेंड। वो क्या थी? एक लीजेंड थी। लीजेंड मतलब इतिहास, जिसने इतिहास रचा, ऐसी व्यक्ति वो थी। एंड शी इज सर्टेनली एन आइडॉल फॉर ऑल द स्पोर्ट्स वुमन। वो सब स्पोर्ट्स वुमन के लिए क्या बन सकती है? आइडॉल बन सकती है, जिनको क्या बनना है? स्पोर्ट्स में करियर करना है। तो इस यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा इस पूरे पार्ट में? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आगे इंटरव्यू आता है इसका। तो मेरी कॉम जो थी, शी इज अनबिटेबल जो थी, मणिपुर के एक छोटे से गांव से आई थी। इस छोटे से गांव में कि जहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी, उसके पेरेंट्स क्या थे? पुअर थे और टेनेंट फार्मर थे, वर्किंग इन अ जूम फील्ड। शी वाज आल्सो यूज्ड टू हेल्प देम इन द फार्मर से मदद करती थी। देन शी यूज्ड टू गो टू स्कूल एंड शी हैड लाइकिंग फॉर एथलेटिक्स। बट व्हेन शी मेट डिंको सिंह, जब वो डिंको सिंह से मिली तो वो उसने उसे क्या किया? इंस्पायर किया एंड शी डिसाइडेड टू बी अ बॉक्सिंग। She decided to choose the boxing as her career, and then she started playing for Manipur State. In 2000, she started her career. She won the Manipur Championship, State Championship, and Regional Championship. And in 2001 और 2001 में उसने इंटरनेशनल डेब्यूट किया। इंटरनेशनल में अपनी शुरुआत की AIBA द्वारा। वो जो संस्था है कि जो जिनको खेलना है तो उनके लिए वो संस्था होती है, उसके द्वारा उसने इंटरनेशनल डेब्यूट किया था। और उसके बाद वो रुकी नहीं, तो यूएसए में उसको सबसे पहला क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। फिर भी वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी, तो उसने देश से क्या कहा? आई एम वेरी सॉरी दैट आई कुडंट गिव यू गोल्ड मेडल। तो इतनी वो डाउन टू अर्थ थी, इसीलिए कहा गया है कि शी इज अ लीजेंड। उसको लीजेंड कहा गया है, वो इतिहास बनाने वाली। तो हम सबके लिए वो क्या है? ग्रेट आइडॉल है।